This is the most longest time I have continued to do a workshop, and this will go down in my own life as a place which was home to me, and inshallah today being the last day, I see it as something which I would give something really best from my side. Thank you very much, sir, for the lovely words. Thank you, Shine sir, for being there with me from last 8 days and handling me. Okay, so sir has already mentioned here that we are all good, right? All of you are good? Show me your hands. Pakka? पक्का हाथ नहीं उठ रहे, देखते हैं किसका हाथ ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, कितने गुड हैं और कौन-कौन ग्रेट है. Let's see whose hand goes to the tallest. देखते हैं, come on try. Who will push their hand to the height? सबसे ऊपर किससे जाएगा हाथ? सबसे ऊपर. और yeah, last girl. Come. Introduce yourself, your name and what do you study? Assalamualaikum. My name is Shanaz. Assalamualaikum. My name is Shanaz and I'm a student of class 12 and student of AS 40. So, how did you make sure your hand went taller than others? What did you do? A student did. Correct, small thing. इन्होंने एक ही काम किया, खड़े होके हाथ उठा दिया. और आप सब लोग सोच रहे हैं कि मैं यहीं से बैठ के मेरा कोई हाथ जो है ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा. कैसे होगा भाई? हो पाएगा क्या? So this is for you. Good. तो आज का पहला लेसन, किताबें खोलो, क्योंकि ये तो लेक्चर नहीं है ना, ये वर्कशॉप है. आप किताबें लाके हैं, प्लीज ओपन योर बुक्स. आई नो द टीचर ट्रेनर्स आर लाइक, सर व्हाट आर यू टीचिंग सर? हम तो जाके टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, हम तो जाके सिलेबस पढ़ाएंगे, वो तो एआई पढ़ा लेगा, आप कैसे पढ़ाएंगे? I am very happy that today we have even the BA students, because wait for 10 years, AI will take over, but AI can't feel what you will feel about the kids. Okay? So please take on. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. अभी भी आपके दादा के जमाने का आंसर है, अपग्रेड हो जाओ. अपग्रेड. Today's program is to upgrade from good to great. जैसा सर ने बताया, we are all good. Anybody here is not good? We are all good. But every day we have to chase greatness, because every day is a new day. Do you agree? Yes. चलिए, हमारे प्रोग्राम में हम सुबह कुछ एक्टिविटी करते हैं. All of you rub your hands. रब. जोर से करो भाई. आते हैं ना? चूल्हे का ठाकुर. Everybody has hands, no? Rub. Come on, boys. गरम. He's smiling, sir. अब चेहरे पे लगाओ. इसे कहते हैं फेयर एंड लवली. क्या बोलते हैं इसको? और इसी फेयर एंड लवली को लगाने से आपका दिन अच्छा होता है. हम सब लोग साथ देखते हैं, दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं. हाँ? सर वो डिपेंड करता है सर. चलिए, ये मेरे ड्रीम्स थे. मेरी उम्र कितनी होगी गेस करो? 55. अब थोड़े व्हाइट बाल देखे ना यार, बोलो 60 बोलो 70 बोलो. हाँ? My God. Okay, I am 42. 1981 I was born, okay? So हिसाब बराबर है ना? 42. So I had a clue there. I wanted to be a pilot. फिर 9th standard, Mr. Deve Gowda became Prime Minister of India, and I was like, अगर ये बंदा PM बन सकता है तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बंदा PM? What is my problem? You see how when we are young, our mind starts looking at big things in life because you think you can do it. And then when I was in 10th standard, I wanted to be a topper. 11th में मेरा नाम पेपर में आया था क्योंकि मैंने आर्टिकल लिखा था. तो मैंने सोचा सारी जिंदगी नाम आता रहेगा, जर्नलिस्ट बन जाओ. फिर किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी. इंजीनियरिंग ज्वाइन किया. इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर मुझे पता चला ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि किताबें खोलता तो तारे जमीन पर दिखते.
Then finally, when I came to third year of my engineering, I was inspired by a hadith. जो हाथ देता है वो लेने वाले से बेहतर है। And तभी से मेरे माइंड में हो गया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरे पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे। The mindset is set long time back. Finally, today I am a brand. My brand name is Career Ka Doctor. I am known in India as the career man. I am, by grace of Allah Almighty, among the top 1% career counselors in India. And that is what makes you different from others. You have to be in the top 1% of wherever you are. Take down. I must aim, please take down the notes. I must aim always to be in the top 1% of my field. आप जो भी फील्ड में रहेंगे, आप उस फील्ड के टॉप 1% में होना चाहिए. Sometimes it will take 5 years, 10 years, and even 20 years to achieve that. But when you are the top 1%, you get super benefits. You have advantage. हम सब लोग जो है बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं. एक किताब है जिसका नाम है Outliers. लिख लीजिए. आप सब लोग जो थोड़ा एडवांस लोग हैं, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूं आज. आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल. आउटलायर्स की किताब में एक चैप्टर है, उसका नाम है 10,000 आवर रूल. 10,000 आवर रूल. और वो कहते हैं अगर आप कोई चीज करते हैं, अच्छे हैं, और अगर आप उस पे 10,000 घंटे मेहनत करेंगे, आपको 2 सेकंड का एडवांटेज मिलेगा. 10,000 hours of focus work on that. तो आज इस वर्कशॉप में हम इंटरेक्ट करेंगे. वैसे दिख रहा है आपको कि हम आपको सोने नहीं देंगे. जो सोना चाहते हैं वो आंख खुले रख के सोएं. आंख बंद करेंगे तो हम जगा देंगे, कैसे भी जगा देंगे. ओके, इट्स जस्ट दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. ओके, सो believe in yourself. Your potential is limitless. You have no idea बेटा कि आपका potential कितना. ये वक्त ही आपको बताएगा कि आपके अंदर कितना potential है. But आपको एक duck की तरह, I say duck, it goes smooth, right? उसको नीचे अपने पैर मारकर रहती है, लेकिन ऊपर से इतना beautiful दिखता है. वाओ, कितना smooth जा रही है. That is what we need to do. Don't settle for small things in life. Trust me, you all can settle for big things. And never settle. ये कौन से मोबाइल का स्लोगन है? Never settle कौन से मोबाइल का स्लोगन है? OnePlus. Never settle, right? OnePlus जैसा OnePlus ने अपना ब्रांड बनाया. मुझे अभी भी याद है. I took my OnePlus 3 way back in 2016 और 15 जब वो लॉन्च हुआ था. ओके, उस समय मोबाइल फोन से नॉट सो इजी. मेरा पहला स्मार्टफोन मैंने IDBI बैंक को DD दे के लिया था. ओके, हाउ डिफिकल्ट थिंग्स वर, बट नाउ हाउ इजी दे आर. Last, please take down. You all need to have a dream. If you don't have a dream, then somebody will use you to their dream. अगर आप अपना ड्रीम नहीं देखेंगे तो किसी और का ड्रीम बन जाएंगे आप. हम सब पैसों को प्यार करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? बहुत करते हैं ना. कभी कभी ऐसा लगता है पैसा ही पैसा. लेकिन क्या मैं बताऊं आपको कि हम सब लोग ऑलरेडी करोड़पति हैं. पता है आपको? किसके पति? करोड़पति हैं. क्योंकि हम सबके पास हर दिन इतने पैसे आते हैं. This is time. 86,400 seconds एक दिन में होते हैं, और ये सारी दुनिया में हर बंदे को इतना ही मिलता है. कोई लड़के झगड़ के एक्स्ट्रा नहीं मिलता. लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो इसको बना देते हैं 8,64,000 in a day because they realize their potential. यहाँ पे पॉइंट क्या है बेटा कि हम सब लोग जो है इस चीज को पैसों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. We will not benefit from that power that God has given. आज हम जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर्स हैं, जिन्होंने एजुकेशन काफी साल पहले करके अब हम आ चुके हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे पास टाइम नहीं है. हम चाहते हैं कि वापस जाके हम कॉलेज में ये पढ़ें. हम चाहते हैं कि वापस जाके उन दिनों को हम वापस अपने लिए यूज करें, लेकिन टाइम नहीं है. I sometimes feel यार सब छोड़ो, जाके फिर दोबारा पढ़ो. With the brain that you have now, हो नहीं पाता.
Because at 42 your brains are different. You have got more grey hair. At 22 there are no grey hair, only pure black hair. Okay? And that time you don't realize what it is. Please take down. Time is money. लिख लीजिए. मेरा time मेरा पैसा है. हिंदी में लिख लीजिए. मेरा time मेरा पैसा. And you have to be very कंजूस with your time. जितना आप कंजूस रहेंगे ना अपने टाइम को लेके, उतना आप लोगों को नो बोलना सीखेंगे. पता है दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? आप कैसे नो बोलेंगे. How to say no. Because the more you say yes, the more you have problem. When you say no, you get time for yourself. और हम लोग क्या है? हाँ बहन तुम्हारा भी काम कर लूंगी. हाँ सर मैं ये भी कर लूंगी. हाँ मम्मी मैं कर लूंगी. हाँ. And then last finally you realize, oh ये तो मेरे हाथ से होगा ही नहीं. आपने yes क्यों बोला? So saying the art of no is a big time management hack, and that's why I have a time management secret for you. Please take down this matrix. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 important aspects को बताया गया है. ये मेरा नहीं है. आइजनहोवर बोल के अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टेक्निक को उन्होंने इन्वेंट किया. उन्होंने अपने सारे कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहली कैटेगरी उन्होंने बनाई वो काम जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, इसको करना है, इसको करना है. क्यों अर्जेंट है? क्योंकि इसका टाइम सेट है. You have to do it by 1 o'clock. You have to do it by end of the day. You have to submit that report by tomorrow morning 11 o'clock. There is a time. So it is urgent. Important because it influences your life. It is your growth. It is your future. It is your success. दूसरा जो क्वाड्रेंट है वो है नॉट अर्जेंट. उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. आप उसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, वो इंपॉर्टेंट है आपको टेंशन नहीं लेने के लिए. उसे कहते हैं नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड. जितने काम हम नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डालते हैं हमारा टाइम उतना अच्छा हम कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है टीचर्स ट्रेनिंग का, एंड ऐसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज मुझे बनाना है प्रेजेंटेशन, करना है प्रेजेंटेशन ऑन December 10, तो मैं अगर एवरी डे आधा घंटा ब्लॉक कर दूंगा कि ये कल से नवंबर 29 से लेकर दिसंबर 5 तक मैं हर दिन आधा घंटा इसको करूंगा, वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है. तो by 5th of December I will have 90% of my presentation ready, and what I will do is I will look for some magic in the next 5 days and I will practice it, and on December 10th I will deliver the best presentation. लेकिन अगर मैं ये करूं 10 तारीख है ना, let me prepare on 8, सडनली 8 तो आपकी हालत खराब हो गई, सडनली आपका इंटरनेट खराब हो गया, आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपको एक्सेस नहीं है, आप क्या करेंगे? तो जो भी काम फ्यूचर का तय होता है उस काम को शेड्यूल करना इज कॉल्ड नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको बुलाया गया है ना प्रेजेंटेशन के लिए, आपकी जिम्मेदारी है, यू आर अकाउंटेबल. तीसरा है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट. ये वो सारे काम है जो हम किसी और को बोल सकते हैं, भाई देखो तुम जा रहे हो ना बुक ले लेने के लिए, लेके आ जाओ. आर यू गोइंग फॉर द होटल? ओके गेट मी दिस आल्सो. ओके कैन वी गो टुगेदर सो दैट वी सेव आवर टाइम. करेक्ट. आप अगर वो काम किसी और से करवा सकते हैं दैट वर्क इज कॉल्ड एज नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क. अर्जेंट क्यों? अगेन डेडलाइन. इट्स समथिंग दैट इज हैविंग अ टाइम. और लास्ट वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, दैट इज नॉट टू डू लिस्ट. हम सब इंसानों के अंदर एक नेचर है, हमारे टू डू लिस्ट बहुत बनते हैं ना. नॉट टू डू बना के देखो लाइफ बदलेगी, क्योंकि नॉट टू क्रिएट्स फियर इन यू. इट टेल्स यू इफ आई डू दिस आई विल फेल, इफ आई डू दिस आई विल गेट स्कोल्डिंग्स, इफ आई डू दिस आई एम डूइंग रॉन्ग. बिकॉज़ ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी अवर्स टू फेलियर. हमारा नेचर क्या है इंसानों का पता है. वी डोंट लाइक फेलियर, वी डोंट लाइक स्कोल्डिंग्स, वी डोंट लाइक नेगेटिविटी. अगर हम उसको लिख देंगे नॉट टू डू, अगर हम उसको शेड्यूल कर देंगे नॉट टू डू, देन वी विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. सो प्लीज फ्रेंड्स follow this. It's a wonderful lifelong technique. Try to simply take a page, draw 2 lines in all the 4 quadrants, put up the task. ये 4 buckets हैं. Create literally 4 buckets. Okay? All this is important but not urgent. समझ में आ रही बात? मैं जो अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, ये important है, urgent नहीं है. लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी लाइफ के बहुत सारे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम आप हैंडल कर सकते हैं.